Why do we need the power flow analysis? We described what are the requirements for power flow analysis, and we told the power flow analysis is nothing but the steady state analysis, finding the normal operating conditions. For the analysis, first of all, we have to represent the system into the matrix form. For that purpose, we describe how to form the Y-bus. So, in this way, we have taken some numerical question also, that how any network can be converted into the Y-bus. Then we have described, or we have rather derived the power flow equations. And those equations, power flow equations, were 4 equations. They were the injected power, injected reactive power at the bus, injected reactive power of the bus, and P and Q was given by this equation. P was this, Pi. I means it is the power injected at bus number I, and where Vi is the voltage of the ith bus, and YIP is the, what is the YIP? It is the ith row, pth column element of the Y-bus, and Vp is the voltage at all rest of the buses. Ith bus you want to find out voltage at rest of the buses, because P is from 1 to n. P can be 1, 2, 3, 4 like this. So voltage of all the buses means what is the power injected at ith bus, it will depend upon not only the voltage of that bus but the voltage of all other buses also. Similarly, delta P is the power angle of the different other buses, and theta IP, what is the theta IP? ये आपको ड्राइव किया था. So what is the theta IP? क्या है ये? Theta IP is the phase angle of admittance of ith row pth column element of the Y-bus. Means Y-bus में जो ith column pth column element है, उसका अगर हम लिखेंगे कंडक्टेंस प्लस J, Gi प्लस JP, कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस, तो उसका जो एंगल होगा दैट इज थीटा IP. ओके. सिमिलरली देयर इज ए इक्वेशन फॉर QI, equation for active power, equation for reactive power. We also derived the equation for number. Yes, please. See here, the equation for voltage was this. No personal discussion, please. Voltage for ith bus, this also we derived. Voltage, we derived the Pi, injected active power, injected reactive power for the ith bus. This is the voltage of the ith bus. Okay, where it will depend upon Pi, Qi, injected power, and also the voltage of all the buses. Suppose करिए फिफ्थ नंबर बस का वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखना है. इट विल नॉट डिपेंड अपॉन ओनली दी फिफ्थ बस, इट विल डिपेंड द वोल्टेज ऑफ ऑल द अदर बसेस. तो वोल्टेज ऑफ अदर बसेस and all the admittances of the network, not only the concerned bus. So this is the equation for voltage. Then we also derive equation for the power angle. So what is the power angle of the ith bus? If this is the voltage, what will be the power angle of this bus? अगर किसी बस का वोल्टेज सपोज A प्लस J या X प्लस J Y है, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दैट बस? कितना होगा? अगर किसी बस का वोल्टेज X प्लस J Y, तो व्हाट विल बी द एंगल? tan इनवर्स Y by X. तो इसीलिए इसी का जैसे ये वोल्टेज है, इससे वोल्टेज से यू कैन फाइंड द एंगल. सो दैट इज द एंगल. सो इट मींस द फॉर्मूला for angle is here this same equation with angle. This is the angle for the ith. It means you now know the 4 equations at each buses. This we have described in the previous class. Now how to solve these equations? Because question is how to solve these equations, because these equations are non-linear equations. So non-linear equation cannot be solved by putting one value of one into another.
and at each bus you know there are two equations. So if it is a 20 bus system, so there will be 40 equations, 40 unknown quantities and 40 known quantities. उसको solve करना है. So just to simplify the things, we have made some approximation. सबसे पहले क्या करते हैं, हमने जो हमारा existing knowledge है उसके accordingly we made some approximation. First of all, we are doing the approximate load flow analysis. Why approximate load flow analysis? So that the equations can be simplified. Okay. So first of all, we are assuming resistances of all the lines are 0. Means आपका ट्रांसमिशन लाइन का कुछ रेजिस्टेंस होता है and 2 + 20 jx. X is the reactance. Okay. ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्ट ऑफ बोथ रेजिस्टेंस सीरीज, एक सीरीज पैरामीटर शंट पैरामीटर. सीरीज पैरामीटर में जो आपका रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट एज्यूम कर लिया, तो क्या बचा, वी एज्यूम द रेजिस्टेंसेस ओनली द ससेप्टेंस विल बी देयर r + jx, तो ओनली रिएक्टेंस बचा, और यू कैन से कंडक्टेंस + jx तो ससेप्टेंस बचा. तो रेजिस्टेंसेस आर मींस एडमिटेंस में कंडक्टेंस पोर्शन गायब हो गया, आपका ओनली ससेप्टेंस बच गया. So that we assume first of all, if we assume the resistance equal to 0, अगर सपोज करिए ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस r + jx, r 0 है, तो थीटा ip कितना होगा, थीटा ip मींस एंगल ऑफ दैट एडमिटेंस, एंगल कितना होगा, या इंपीडेंस में रेजिस्टेंस + jx में रेजिस्टेंस 0 है तो इंपीडेंस का फेसर कितना होगा, r + jx में r 0 है तो x, तो उसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. r + jx, r 0 है तो 90 डिग्री हो गया, तो भी इट मींस इट बिकम द 90 डिग्री. तो देखिए if we assume 90 डिग्री हियर, देखिए अगर आपने जो आपकी इक्वेशन था, दीज आर द इक्वेशंस, जो आपकी इक्वेशन है प्लीज सी है EI, इसमें 90 डिग्री एज्यूम कर लिया आपने, तो इससे क्या होगा, cos 90 - थीटा क्या होगा, sin थीटा, और ये sin 90 - थीटा, ठीक है. तो एक तो आपका ये 90 डिग्री एज्यूम हो गया. नाउ अब सेकंड थिंग क्या हम एज्यूम कर रहे हैं, पावर एंगल. सभी बस का जो पावर एंगल है नॉर्मली किस रेंज में हमने आपको बताया था, पावर एंगल ऑफ द बसेस नॉर्मली का 20 डिग्री से 20 से 30-35 डिग्री, मींस पावर एंगल इज 20 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री. इट इज नॉट वर्किंग एट 90 डिग्री. पावर एंगल इज स्मॉल. Why do we keep it as small? To have the strong stability of the system. अगर आपका पावर एंगल 90 डिग्री होगा, इट मींस जस्ट यू कैन बी अनस्टेबल. सिस्टम अनस्टेबल का मतलब क्या है, अनस्टेबल का मतलब समझते हैं, इट विल कोलैप्स, इट कैन नॉट गिव द सप्लाई. सिंक्रोनाइजेशन विल लूज. सिंक्रोनाइजेशन लूज मींस आपका रोटर कैन नॉट सप्लाई पावर टू द स्टेटर. तो रोटर अलग घूम रहा है, स्टेटर अलग घूम रहा है, सो देयर विल बी नो मैग्नेटिक कपलिंग. उसमें मैग्नेटिक लॉकअप, सिंक्रोनस मशीन का, सिंक्रोनस जनरेटर का मैग्नेटिक लॉकअप खत्म हो गया. उससे क्या होगा, आपका सिस्टम अनस्टेबल हो गया. रोटर और स्टेटर के बीच में कोई ट्यूनिंग नहीं रह गई. पावर ट्रांसफर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में पावर ट्रांसफर खत्म हो जाती है. इसलिए क्या हुआ, द पावर एंगल इज केप्ट लो, एंड पावर एंगल इज लो. सो एंड व्हाट इज दिस, डेल्टा P - डेल्टा I. डेल्टा P क्या है, what is delta P? Delta, as I told, delta is the power angle. So what will be delta P? हाँ बताओ. अभी मैंने आपको बताया डेल्टा इज द पावर एंगल. सो व्हाट विल बी डेल्टा P? पावर एंगल ऑफ P is the number of the bus. डेल्टा P क्या होगा, पावर एंगल ऑफ बस नंबर. ठीक है, तो ये पावर एंगल ऑफ बस नंबर B है, ये पावर एंगल ऑफ बस नंबर I है, और ये दोनों 30 के अराउंड है, तो उनका डिफरेंस और कम होगा, यूनिट और कम होगा. सो if we
BP assume power angle small. Power angle. So what is the, if the delta is small, what will be the sin delta? Sin delta will be equal to delta. Sin delta will be equal to delta. होगा कि नहीं होगा? Yes sir. रेडियन में लिखते हैं, ऐसा नहीं 30 डिग्री में नहीं, रेडियन में एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करके साइन ऑफ दैट रेडियन लेंगे इक्वल टू नॉर्मली वही होता है साइन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज ओके और नॉट? यस सर. सो नाउ व्हाट वी डू, आपका इसमें इस इक्वेशन में ये देखो यहाँ 90 डिग्री cos 90 माइनस थीटा ये साइन हो गया. अच्छी तरह आप इसे समझें. ये d की वैल्यू था, d में 90 डिग्री होने से ये साइन हो गया और डेल्टा स्मॉल होने से साइन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा हो गया. ओके तो अब आपका ये इक्वेशन क्या हो गई? Pi इज इक्वल टू Bi, P इज इक्वल टू 1 to n by I की Bp और डेल्टा P माइनस डेल्टा I. इज दिस क्लियर और नॉट? देखो इसे एक बार अपनी कॉपी पे लिखना. Pi इज इक्वल टू, Pi इज इक्वल टू यहाँ से ऐसा है Bi, इसका मतलब समझते होगे मैग्नीट्यूड. Bi P इक्वल टू 1 to n by I की Vp. Pi इज इक्वल टू Bi, P इक्वल टू 1 to n by I की Vp डेल्टा P माइनस डेल्टा I. कितने लोगों ने लिख लिया? रेज द हैंड. लास्ट. हाँ लिख लिया हमने इक्वेशन. Pi की इक्वेशन दिखाओ जाकर. कम हियर दिखाओ Pi की इक्वेशन क्या लिखा है. यस लास्ट आप लिखिए इक्वेशन दिखाओ. हाँ इधर लास्ट जल्दी से लिखिए इधर लास्ट. अभी तो मैं देख रहा हूँ ये तो यही लिखा हुआ था. आप ठीक से सुनो भी भाई, मैं चेक करूंगा. इसको थीटा आईपी को 90 डिग्री एज्यूम कर लिया और ये cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया. अब cos की जगह साइन हो गया और फिर साइन थीटा इक्वल टू थीटा. ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा? आपका इक्वेशन जो लिखनी है Bi P इक्वल टू 1 to n by I की Vp डेल्टा P माइनस डेल्टा I इतना लिखना है. तो आप मुझे ये लिख के दिखाओ. लास्ट दिखाओ. हरी अप. हाँ आप लास्ट. हाँ भाई लास्ट कैंडिडेट खड़े हो. दिखा दो हरी अप. जल्दी लिखो. हाँ इधर से लास्ट इस रो में खड़े होकर दिखाओ. ये 90 डिग्री है जो दोबारा से बता रहा हूँ. ये 90 डिग्री हो गया तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा तो cos ऑफ दिस इसकी जगह sin थीटा हो गया और अब sin थीटा इज इक्वल टू ओनली थीटा तो ये भी हट जाएगा. मतलब ये भी हट गया ये भी हट गया इतना बच गया. ये लिखवा रहा हूँ मैं आपसे. कितने लिख लिया? हाँ भाई दिखाओ. यस हरी अप. ठीक है. हाँ भाई और आपने लिख लिया? आपने लिखा बीच में लिख दिया. डेल्टा हमें लिख लिया. वोडाफोन का लिखा है इसमें सेम इक्वेशन आपकी भैया आपने ऊपर लिखी हुई है. उसके आगे इसको एक्सपेंड करना है. डी की जगह 1 लिखोगे 1 2 3 4 अप टू एंड. समझ गए कि नहीं? जो आपकी ये बात नहीं जो इक्वेशन आपकी आई है उस इक्वेशन में इसको एक्सपेंड कर. आई को Pi को Pi लिखेंगे, Bi को Bi लिखेंगे. यहाँ भी सब आई की जगह आई लिखेंगे. केवल P जहाँ है उसकी जगह 1 2 3 4 5 एक बार 1 लिखेंगे फिर नेक्स्ट टर्म में 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे अप टू n. मतलब 2 3 लिख के लास्ट का nth ऐसे लिखो. राइट दिस. राइट Pi की इक्वेशन लिखो भाई. इक्वेशन 4 Pi इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना.
एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, बैठा देना, उठ जाना। हाँ, किसने लिख दिया? रेज द हैंड। इट इज नॉट इज गया ना, स्मॉल इक्वेशन इज देयर। रेज द हैंड प्लीज। कुनाल का नहीं कर दे, हाँ भाई कर दे कुनाल का नहीं। लिख लिया, बताओ। डेल्टा भी हो जाएगा क्योंकि 90 माइनस थीटा माइनस थीटा, तो ये डेल्टा आई मतलब डेल्टा आई माइनस डेल्टा 1, डेल्टा आई माइनस डेल्टा 2, डेल्टा आई माइनस डेल्टा 3, डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई। ओके, रेज एंड सभी का हो गया। क्यू का इक्वेशन यही है, ये आपका साइन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, लेकिन कोस डेल्टा डेल्टा नहीं होता, कोस स्मॉल होने पे ऐसा नहीं होता। कोस क्यू का इक्वेशन यही रहेगा, कोस इक्वेशन इज सेम। नाउ अब देखिए, आपने जो इक्वेशन लिखी है, प्लीज लिसन। टी आई का इक्वेशन जो लिखा था, टी आई का इक्वेशन किसने लिख लिया? रेज द हैंड। टी आई, हाँ किसने लिखा है अब तक? एक केवल इतने लोगों ने लिख पाया। आप में से ये बताओ, रेज द हैंड प्लीज। नाउ प्लीज लिसन अगेन। इन प्लेस ऑफ आई राइट 1 2 3 4, तो ये आएगा P1 P2 P3 P4। ठीक है, ये आ गया समझ में? इफ यू राइट इन प्लेस ऑफ I1 तो P1, इन प्लेस ऑफ I2 देन P2 P3 P4 Pn, इस तरह लिख पाएंगे। इज दिस these equations are clear or not? ये हमारी एक्टिव पावर की इक्वेशंस है। तो while doing the approximate load flow analysis, इसमें हमने क्या क्या अज्यूम किया है? नंबर 1 क्या अज्यूम किया था? रेजिस्टेंसेस आर जीरो, ये तो ये अज्यूम किया था, रेजिस्टेंसेस आर जीरो, और and second assumption was delta is small। ये तो अज्यूम किया था आप तक, तो आपकी ये इक्वेशन बन गया था। with these assumption हमारा ये इक्वेशन हो गई। these equations are linear और नॉन लीनियर, ये लीनियर इक्वेशंस है। एंड थर्ड assumption इज, तीन assumption, दो assumption हमने बता दिए लोड फ्लो एनालिसिस का। तीसरा assumption एक और है, उसमें ये assume किया कि ऑल द बसेस आर जनरेटर बसेस, ऑल्दो इट इज नॉट देयर, लेकिन हमने ये assume कर लिया सभी जो हमारा बसेस है वो जनरेटर बस है। तो उससे क्या हुआ? जनरेटर बस और वोल्टेज कंट्रोल। फर्स्ट बस था स्लैक बस, स्लैक बस में हमेशा स्लैक बस भी एक तरह से जनरेटर बस ही होती है, क्योंकि उसमें आपको यू आर गिवन वोल्टेज इज नॉन, वोल्टेज कंट्रोल बसेस, तो वोल्टेज इज नॉन एंड पावर एंगल इज जीरो। तो एक स्लैक बस हो गई, बकाया जितनी भी बसेस हैं वो जनरेटर बसेस हैं। जनरेटर बस का मतलब क्या है? उस पर क्या गिवन होगा? गिवन क्या होगा? P एंड V। जनरेटर बसेस में मतलब क्या है? P इज गिवन एंड वोल्टेजेस आर गिवन, और निकालना क्या होगा फिर? P एंड V गिवन है, तो निकालना क्या होगा? If the all other than slack buses, at all buses P active power and voltage is given, तो निकालना क्या है? Q एंड डेल्टा, ये तो निकालना, चार चीजें होती हैं, रिएक्टिव पावर और उनका एंगल निकालना है। और ये हो गई आपकी ऑल द बसेस ऑफ पीवी बस, इसका मतलब आपका P2 P3 Pn, एक्टिव पावर ऑफ ऑल द बसेस आर नोन। ठीक है, एक्टिव पावर ऑफ ऑल द बसेस आर नोन, वोल्टेजेस ऑफ ऑल द बसेस आर नोन, V1 V2 V3 ये सब
वोल्टेज ऑफ ऑल द बसेस आर नोन, और नेटवर्क का बाईबस तो होता ही है, बाईबस इज गिवन, सो बाईबस इज मींस एडमिटेंसेस आर गिवन, ऑल द बाईबस, बाईबस मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ द बाईबस, सो ये बाई भी गिवन है, और स्लैक बस है तो डेल्टा 1 0 हो गया। तो ये अगर 2 से लेके n तक देखेंगे तो एवरीथिंग इज गिवन, व्हाट इज नॉट गिवन इन दिस, P2 से लेके और Pn तक देखेंगे तो क्या गिवन नहीं है, क्या भाई तो बता रहे बाईबस में वाई तो गिवन है, नेटवर्क तो गिवन होगा ही होगा, क्यों तो इसमें ही नहीं, इसमें बताना क्या गिवन नहीं है, डेल्टा, केवल आपको पावर एंगल नहीं पता है। अब देखो इससे ना सिर्फ इक्वेशन लीनियर हो गई बल्कि ये क्यू पे डिपेंडेंट भी नहीं है, these are not dependent upon the Q because voltage and reactive power are depending to each other। वोल्टेज को हमने फिक्स माना है क्योंकि पीवी बस है, तो these are not dependent upon voltage और reactive power, तो ये हमारा सेपरेट हो गई इक्वेशन। और इसमें क्या है, डेल्टा केवल अगर हम फर्स्ट बस तक स्लैक बस फर्स्ट बस को अगर भूल जाएं तो 2 से लेके n तक n-1 इक्वेशंस हैं, n-1 इक्वेशन में आपका p गिवन है, y गिवन है, और अब डेल्टा 2 क्या निकालना है, डेल्टा 2 से लेके डेल्टा n, ठीक है, डेल्टा 2 से डेल्टा n, तो जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही अननोन है, और इक्वेशन लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। So if the equations are linear, by putting the value of one into another you can solve it. Is there any question up to now? यहाँ तक कुछ? So by doing the approximation or by making some assumption, we have approximated the load flow study. That's why it is called approximate load flow study, and we can solve it. For further simplification, हमने because equations are more, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये इक्वेशंस नंबर ऑफ इक्वेशंस आर मोर, अगर 2-3 इक्वेशन है तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, बट इफ द इक्वेशंस आर से 20 तो उसके लिए इसको फिर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये V2 वोल्टेज यहाँ P2 के साथ आ गया, V3 P3 के साथ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये ऐसा बन गया, और ये जो आपका है ये इसमें डेल्टा 2 टर्म एक साथ ले लो, डेल्टा 3 एक साथ ले लो, उसको रीअरेंज करके तो ये इक्वेशन बन गया, एंड यू कैन राइट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म लाइक दिस, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। फर्दर दिस कैन बी अज्यूम्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको अज्यूम करेंगे तो हमारा फाइनली इक्वेशन आ गया, वेयर दीज आर द रियल नंबर, ये इसका वो है मैग्नीट्यूड है, दिस इज ए मैग्नीट्यूड नॉट द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने एज्यूम किया था थीटा आईपी 90 डिग्री एज्यूम कर लिया था ना, थीटा आईपी क्या था, थीटा आईपी वाज द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ वाई एडमिटेंस, वाई और वाई मतलब क्या, ith रो pth कॉलम एलिमेंट मैट्रिक्स है उसका एंगल थीटा आईपी, तो थीटा आईपी आपने एज्यूम 90 डिग्री कर लिया था, इसलिए ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज नॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये आपको पता है मैग्नीट्यूड, ये आपको मालूम है, तो ये इट इज वेरी सिंपल, अगर नंबर ऑफ बसेज आ जाती है तो इनवर्स ऑफ दिस यू विल गेट एज ए डेल्टा, ओके, तो आपको सभी डेल्टा पता लग गया, डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा n सब पता लग गया, ओके, सो और ये हाउ टू फाइंड द इनवर्स, इनवर्स कैसे निकालेंगे, मैटलैब में क्या कमांड है इनवर्स निकालने का, आपको बेसिक तो बता दिया ना, व्हाट इज द कमांड इन द मैट्रिक्स, ये भी आपको बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा मैट्रिक्स आप मैनुअली तो कर लेंगे, लेकिन अगर 20/20 का है उसमें इनवर्स निकालना हो तो आपको मैटलैब का एक कमांड बताया हुआ है, कौन बताएगा, रेज द हैंड, हाँ खड़े होकर बताओ, INV सर, हाँ सिंपली INV, उसके अंदर आपका जिसका भी मैट्रिक्स निकालना है इसका INV वाई बस, तो आपका ये कमांड सिंपली इनवर्स निकाल दिया, इसका मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लिकेशन का कमांड क्या है, हाँ भाई आप बताओ, व्हाट इज द कमांड फॉर मल्टीप्लिकेशन इन द मैटलैब, दे कुणाल नाम है, पता नहीं
मैटलैब में ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का क्या कमांड है? ए स्टार बी, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल। जब आप मैटलैब के थ्रू जाओगे ना, थ्योरी समझ के बहुत सिंपल है। तो ये आपका सिंपली आपका क्या आ गया? डेल्टा। तो अब नाउ प्लीज लिसन, आपको क्या क्या पता लग गया? पी, देखिए बाई बस तो नेटवर्क था, गिवन था। वोल्टेज आपने एज्यूम किया था 1 पर यूनिट, पी गिवन, तो फिर क्या डेल्टा निकल गया। तो आपको पी भी पता लग गया, डेल्टा भी पता लग गया, वोल्टेज भी पता लग गया। क्या बचा अब? हाँ भाई, कौन बताएगा? व्हाट इज लेफ्ट? लोड फ्लो स्टडी में आपको पी पता लग गया, वोल्टेज पता लग गया, डेल्टा पता लग गया, बचा क्या? पीछे देखो उनका पीछे। हाँ भाई, आप बताओ। हाँ यस, हाँ यस यस सर क्या बताऊँ? आपको इस अप्रोक्सीमेट लोड फ्लो स्टडी से अभी आपको पता लग गया व्हाट इज द P are given, voltage are given, and delta you have calculated from here. तो रेस्ट क्या बचा है जो कैलकुलेट करना है? एडमिटेंस कैलकुलेट। एडमिटेंस तो बाई बस है, वो भी गिवन है। हाँ इधर से बताओ, इधर तो कौन बताएगा? हाँ क्यू बचा है। हाँ क्यू, क्यू क्या होता है? व्हाट इज क्यू? रिएक्टिव पावर। कहाँ पे? किस बस की वाई है? वाई बस। सभी बसेस का क्यू बचा हुआ है। क्यू इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल द बसेस। ठीक है ना? प्लीज अगेन कम टू दिस पॉइंट। देखिए अब आपने ये क्यू का इक्वेशन है, कीप क्वाइट प्लीज। ये क्यू का इक्वेशन है, क्यू आई, इसको एक्सपेंड कर लोगे आप। आपको कुछ अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं करना है, साइन लिखते हैं, साइन और पी की जगह 1 2 3 लिखते जाएंगे। तो साइन फर्स्ट टर्म, फिर दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसा आ जाएगा। क्यू आई लिख लेंगे, क्यू आई के बाद Q1 Q2 Q3 लिख लेंगे जैसा अभी किया था। आई की जगह 1 2 3 करेंगे, 2 स्टेप होगा। पहला आपका T की जगह 1 2 N लिखेंगे, क्यू आई आ जाएगा। फिर क्यू आई का डिटेल करेंगे। तो आपको प्लीज लिसन, Q1 Q2 Q3 Qn इक्वेशन आ गई। अब उस इक्वेशन में आपको नॉन क्या नहीं है ये कैलकुलेट करना है। इसके अंदर क्या नॉन नहीं है? देयर इज एनीथिंग देयर? इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपके पास नहीं है? बताओ, इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपके पास नहीं है? हाँ भाई बताओ हैं? हाँ एवरीथिंग इज नॉट। देखिए वाई आई पी क्या है? वाई बस का टर्म है, वाई बस आपको पता है। वीबी वोल्टेजेस, क्योंकि पी और बी आपने एज्यूम किया हुआ है, वोल्टेज सभी बस का मालूम है। और डेल्टा पी अभी कैलकुलेट हुआ है तो डेल्टा भी पता है। एवरीथिंग यू नो फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब Q1 Q2 Q3 even if these equations are non-linear equation, you can find the value of all the reactive power injected at bus number at all the buses. ठीक है? So it means in this way you can calculate all the 4 parameters. कर सकते हैं? Once you calculate all the 4 parameters, अब उसके बाद में इंजेक्टेड पावर आपको पता लग गया। अब क्या बच गया? पावर फ्लो एनालिसिस में आपको बताया था ये तो अगर आपका पी क्यू बी डेल्टा सभी बस का मालूम है तो आपका एनालिसिस हो गई। उसके अलावा और भी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या? जैसे लॉसेस कैलकुलेट करना है तो इसमें लॉसेस कितना आएगा? लॉसेस कितना आएगा यहाँ? लॉसेस इन द पावर फ्लो कर रहा है ना तो कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, तो कितना आएगा? हाँ कौन बताएगा? सेकंड लास्ट रो बताओ, लॉसेस कितना आएगा?
इसमें सेकंड लास्ट लो, इफेक्टिव सेकंड लास्ट लो। हाँ बताओ इसमें लॉसेस कितना होगा? हाँ गर्ल्स में सेकंड रो स्टार्टिंग से लॉसेस हैं। एक्टिव माइनस रिएक्टिव सेपरेट है, रिएक्टिव सेपरेट होती है, उसमें आपस में इन्होंने के लोगों ने तो ले ली। लॉसेस होते क्या है सर? कोई भी एक आप नेटवर्क है उसमें लॉसेस कितने होते हैं? लॉसेस जैसे कोई नेटवर्क आप पढ़ते हो KCL KVL, उसमें सपोज एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और कुछ करंट जा रही है तो कितने लॉसेस होंगे? इसमें R कितना है? रेजिस्टेंस कितने हैं? रेजिस्टेंस आपको इसमें रेजिस्टेंस 0 एज्यूम किया था ना। ये अप्रोक्सीमेट लोड फ्लो स्टडी थी, आपको शुरू से ही मैं बताया था रेजिस्टेंसेस आर नेग्लेक्टेड, तो लॉसेस कितने हो गई? तो इसलिए इस केस में अप्रोक्सीमेट लोड फ्लो स्टडी में लॉसेस आपके नेग्लेक्ट हो गई, लॉसेस 0 हो गई। ठीक है, तो इसमें लॉसेस नहीं है। दूसरा, अब उसके अलावा और क्या बच गया जो आपको निकालना है? पावरफुल एनालिसिस अभी तो कंप्लीट हो, PQV डेल्टा निकाल लिए, लॉसेस पहले से ये 0 एज्यूम किया हुआ है। और एक बच गया इसके अलावा पावर फ्लो, ये तो इंजेक्टेड पावर है, ये क्या है? इंजेक्टेड पावर। और एक बार पावर फ्लो मींस पावर फ्लो इन द लाइन। ट्रांसमिशन जैसे बस नंबर ये है और बस नंबर ये है, I और J के बीच में, और I और J के बीच में एक लाइन है, एक I और K के बीच में, एक I और M के बीच में लाइन है। तो I और J के बीच में पावर फ्लो वो कैसे निकालेंगे? P कैसे निकालेंगे? P इजिकल टू P का फिर फॉर्मूला, ये निकालने के बाद फिर ऐसा नहीं ये रुक गई, उसके बाद और भी स्टडीज होती हैं। पावर फ्लो एनालिसिस निकालने के लिए P इजिकल टू EV/X साइन डेल्टा पढ़ा है कभी? सिंक्रोनस मशीन में पढ़ा होगा पावर का। P इजिकल टू EV/X डेल्टा, E इज द पावर ऑफ वन एंड, V इज द वोल्टेज, डेल्टा लाइन की रिएक्टेंस, तो पावर इजिकल टू EV/X साइन डेल्टा। तो इस बस का वोल्टेज और इस बस का वोल्टेज अगर पता है और लाइन का रिएक्टेंस पता है X, तो उसका पावर फ्लो निकाल लेंगे E/X साइन डेल्टा। ऐसे ही रिएक्टिव पावर का इक्वेशन पता है। तो पुराना स्टडी भी आप करके आओ, ठीक है, जो आपने इलेक्ट्रिकल मशीन 2 जिसमें आपने सिंक्रोनस मशीन पढ़ा था, ठीक है। तो सिंक्रोनस मशीन में P का क्या फॉर्मूला था और Q का क्या फॉर्मूला था, तो आपको पता लग जाएगा P और Q का। तो फिर आप पावर फ्लो ऑफ ऑल द लाइंस यू कैन फाइंड। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कितना पावर है वो आपको निकाल देंगे। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? सो अप्रोक्सीमेट लोड फ्लो एनालिसिस is over. In the next class we will take the Gauss-Seidel method. There are other method also. One is the Gauss-Seidel method, then there is a neutral reaction method, then there is a fast decoupled neutral reaction method, and some others also. Okay. So is there any question please? Girls में पूछना है कुछ? मिडिल रो मिडिल कर, हाँ बताओ। एनी क्वेश्चन? तेरी तरफ नहीं करना। माइक तो चाहो तो ध्यान कर लो। चल रहे हो आगे दे दो। चलाओ उत्तर देश का नहीं। ठीक हो रहा है क्या अभिषेक?